Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well. Today our topic is Golden File number 16, February 2023 morning paper. Question number 1 is posterior hypothalamus will cause shivering. So the hypothalamus का function ये होता है कि it causes thermoregulation. There is anterior hypothalamus and posterior hypothalamus. ओवरऑल अगर टेम्परेचर रेगुलेशन की बात होती है तो इंटीरियर हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व्ड, बट यहाँ ये पूछ रहे हैं कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कॉज क्या करता है, तो इट कॉज शिवरिंग यानी कि कोल्ड टेम्परेचर को असेस करता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, एंड इंटीरियर हाइपोथैलेमस हीट को रेगुलेट करता है. Patient had injury in upper arm beneath axial region near floor. What will be injured? Intercostobrachial artery, क्योंकि वो फ्लोर ऑफ एक्सिला पर लाई करती है. Intercostobrachial artery. Uterine artery crosses which structure to enter in uterus? Ureter. Water under the bridge. ऊपर uterine artery है, ovarian artery है और नीचे ureter है. In diabetics postprandial period there is इंक्रीज ग्लूकोज एंड इंसुलिन, क्योंकि ग्लूकोज फूड में क्या बॉडी में क्या फिल्टर होके ब्लड में एंटर हुआ तो इंसुलिन का रिलीज आएगा फ्रॉम पेनक्रियास. व्हाट हैपेंस टू स्पर्म रीचिंग इन एपिडिडमिस? डायरेक्शनल मूवमेंट. Urogenital tract is supplied by pudendal nerve S2, S3, S4. Diphtheria confirmed by hematologist as early by morphology in new stain is Albert stain. Albert stain is for diphtheria. Inferior phrenic is a branch of abdominal aorta. Horseshoe kidney associated with pelvic ureteric junction abnormality, क्योंकि abnormal junction lie करता है at the lower poles of both kidneys. Inferior phrenic का याद रखना, it's the branch of abdominal aorta. Increase extracellular fluid potassium, what will affect on heart? Systolic cardiac arrest. अगर hypercalcemia and hypokalemia है तो there is systolic heart arrest. If there is hypocalcemia and hyperkalemia, then diastolic heart failure. Diagnostic test to rule out MI is troponin I because it is sensitive. Patient with MI died even after aggressive management likely causes shock, cardiogenic shock. Pregnant patient high grade fever, watery vaginal discharge. तो chorioamnionitis. Pregnancy है, मेम्ब्रेन्स की एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स की या कोरियोन की इन्फेक्शन हुआ तो IL-6 रेज होगा और सिम्टम्स क्या आएंगे? वाटरी डिस्चार्ज. A patient has thyroid gland mass and there is swelling. What is remnant thyroid cecum called? Thyroglossal cyst. Thyroglossal duct. Duct जो होती है ये इसका remnant होता है जो thyroid cecum यानी टंग का posterior most part, वो अगर रिमेन रहेगा, फ्यूज नहीं होगा तो दैट फॉर्म्स थायरोग्लॉसल डक्ट. इसीलिए ग्लॉसल से याद रखना है कि जब जब टंग को आउट करें तो थायरोग्लॉसल डक्ट मूव करती है विद द प्रोट्रूजन ऑफ टंग. A schizophrenic patient having galactoria and hyperprolactinemia due to which of these? Phenothiazines. Phenothiazines क्या करती है? schizophrenic patients को दी जाती है और ये साइड इफेक्ट इसका क्या है कि galactoria कॉज कराती है. इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 3, एल्डोस्टेरोन रिलीज. हमने पढ़ा था ना रेस्ट, तो एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन रिलीज कराता है और वेसल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. सपोर्टिव सेल्स ऑफ पास नर्वोसा आर पिट्यूसाइट्स. Mother has child of 10 years diagnosed with meningitis and now she asks that another two child 4 and 6 years old are at risk of meningitis. Tell her the route of spread of infection. It is respiratory droplet. Increase mean arterial pressure and right arterial pressure.
with decreased resistance to venous return is seen in which of the following exercise? एक्सरसाइज अब करते हैं तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। राइट एट्रियल प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है ना, तो ज्यादा वीनस फ्लो आएगा इनटू द राइट एट्रियम विदाउट एनी मच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आंसर इज एक्सरसाइज। 40 years old man come in ER with complaint of body weakness and oliguria. He gave history of taking some drug for weight gain from general quack. Urine detailed report, urine specific gravity is 1.0. Urea cret is raised. ALT is slightly raised. Urine calcium is also raised. The likely diagnosis is nephrocalcinosis. ड्रग इंड्यूस्ड है, क्रिस्टल्स बन गए हैं इनसाइड द रीनल पाथवे, और इसमें हिस्ट्री क्या है? ओलिगोयूरिया, यानी बहुत स्कैंटी यूरिन है, बहुत कम यूरिन है, और बॉडी वीकनेस है along with a history of taking drug from general quack. So this is nephrocalcinosis. A patient presents with heart rate of 102 beats per minute, BP 90-60, and tachypnea. On standing, her heart rate increases to 110. What is the mechanism behind this? Decreased venous return. जैसे ही पोजीशन चेंज हुई तो हार्ट रेट फर्दर इंक्रीज हुआ, तो दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज venous return. When person stands from sitting, venous return decrease, which then leads to compensatory things, which are increased heart rate and increased cardiac output. Sitting position से जब patient stand करता है तो venous return is decreased because of the effect of gravity. जब ये डिक्रीज आएगा तो ऑब्वियसली कंपनसेटरी चेंजेस आएंगे हार्ट में, विच आर इंक्रीज हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होगा. सो द बेसिक मैकेनिज्म अंडरलाइंग इज compensatory changes is decreased venous return, and the mechanism for compensation is also decreased venous return. Compensatory change is increased heart rate and cardiac output. A study done on women who used to drink alcohol during antenatal period to study the effect of alcohol on baby weight. Which type of study is this? Prospective study. एक होती है retrospective, in past already जो events हो चुके हैं उनकी study के लिए to extract the effect, तो उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव. लेकिन प्रोस्पेक्टिव है इन फ्यूचर, हमने कोई चीज अभी हुई नहीं है उसको एसेस करना है, तो दैट इज प्रोस्पेक्टिव. लेकिन एल्कोहलिक मदर है, हमने बेबी पर इफेक्ट उसका पड़ा है, अभी ऑलरेडी इफेक्ट्स आए नहीं हैं, लेकिन हमने जो इन फ्यूचर इफेक्ट्स आने वाले हैं उनको पढ़ना है, तो दैट इज प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ जा रहा है. अगर ऑलरेडी इफेक्ट्स आ गए होते तो उस टाइम इट वुड बी रेट्रोस्पेक्टिव. Probability of difference in two means checked by which test? Significance. Arshad had eaten chole from a street vendor, now develops nausea, vomiting and jaundice. What is likely cause? Hepatitis A. ओरोफिकल रूट होता है ए और ई का, और हेपेटाइटिस ए जो है वो बहुत कॉमन है. आजकल भी वार्ड्स में, मेडिसिन की वार्ड्स में पेशेंट्स एडमिटेड हैं बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए, और ये होता है अनहाइजीनिक फूड की वजह से. Negative charge of basement membrane is due to laminin. Prefer heparin sulfate, if not then laminin. What is the landmark of sacral hiatus triangle base? Line connecting posterior superior iliac spine.
एक होता है एंटीरियर सुपीरियर, दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। तो ये है सैक्रल हाइएटस, यानी सैक्रल ट्राइंगल की ओपनिंग। हाइएटस मींस ओपनिंग। मैक्सिमम ऑक्सीजन सैचुरेशन इज फाउंड इन अम्बिलिकल वेन्स। वेन्स जो होती हैं जो प्लेसेंटा से फीटस की तरफ जा रही हैं, तो they are actually in red color. Veins are in red color. Regarding urinary bladder, true is motor supply by sympathetic and parasympathetic both. Peritoneum covers superior and upper part of posterior surface, rest all surfaces devoid of peritoneum, यानी सिर्फ सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर को करती है, कवर करती है पेरिटोनियम, बाकी सारा पेरिटोनियम इज डिवॉइड ऑफ सारा ब्लैडर इज डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। मोटर सप्लाई बाय बोथ सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हाइपोगैस्ट्रिक हमने प्लेक्सस देखे थे ना, तो इसमें सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बोथ प्लेक्सस आर इनर्वेटिंग द ब्लैडर। पेरिटोनियम की बात याद रखनी है कि इट कवर्स सुपीरियर एंड अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर की भी अपर पार्ट और ओवरऑल सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर को कवर करती है, लेकिन बाकी सारा ब्लैडर इज डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। विच ड्रग इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट? कीटामीन एनेस्थेटिक ड्रग है एंड इट कॉजिंग ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट तीनों को रेज करता है। Patient for caudal block, doctor want to give more anesthesia, which will be used? ब्यूपीवकेन। इसकी प्रोटीन बाइंडिंग होती है ना ब्यूपीवकेन की। तो कॉर्डल ब्लॉक के लिए अगर ज्यादा एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड है तो ब्यूपीवकेन इज यूज्ड। मल्टी ग्रेविटा केम विद ब्लीडिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ कोagulation ड्यू टू इंट्रायूट्राइन फीटस डेथ। व्हाट इज द इनिशियल मैनेजमेंट? इवैक्यूएशन। सबसे पहले फीटस को इवैक्यूएट करेंगे। और ये ब्लीड क्यों कर रहा है? क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है और ऑलरेडी कोagulation भी नहीं हो रही है, तो इसलिए सबसे पहले ये फीटस को इवैक्यूएट करेंगे। उसके बाद यूट्रस को कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में जब यूट्रस आएगा तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अब फेलियर ऑफ कोagulation इज अ डिस्ट्रैक्टर हियर। डिस्ट्रैक्टर्स को भी आपने देखना है कि उससे आपने बचना है, अपने आप को बचाना है टू रीच द डायग्नोसिस। मल्टी ग्रेविटा है ना, मल्टी से याद रखें कि उसका जो यूट्रस है ना ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी स्टेट अच्छी नहीं है। जैसे सी सेक्शन में करते हैं ना, तो वो जो लोअर सेगमेंट होता है यूट्रस का, इट इज लाइक पेपर थिन, इतना ज्यादा वीक होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन उसकी प्रॉपरली नहीं होती। इसीलिए जिनके एक दो दो या दो से ज्यादा सिजेरियंस होते हैं उनको कभी भी ट्रायल नहीं देते नॉर्मल लेबर का, उनका फिर सी सेक्शन ही होता है। तो ये मल्टी है ना, तो ऑलरेडी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन उसकी प्रॉपर नहीं है, इस वजह से उसको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगी? सबसे पहले इवैक्यूएशन करेंगे, क्योंकि दिस इज द रूट कॉज ऑफ ब्लीडिंग। Fetal blood leaving placenta having oxygen is 30 mmHg. Glomerular basement membrane act as strict barrier due to which kind of lamina? Lamina externa. Interna externa दो है ना, तो glomerular basement membrane act as a strict barrier किस वजह से? lamina externa की वजह से। Which type of inflammation is present in appendicitis with pus cells in it? Suppurative. पस पड़ती है ना, तो suppurative cells are involved. Primary vellus consist of, प्राइमरी में क्या था? साइटो प्लस सिंसिशियो, सेकेंडरी में साइटो सिंसिशियो प्लस मीजो, एंड टर्शरी में साइटो सिंसिशियो प्लस कैपिलरीज। टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इज आईजीजी। न्यूबॉर्न्स में भी आईजीजी होता है, आरएच में भी आईजीजी। सेम क्वेश्चन। Man smoke 20 packs per month from 30 years develops lung cancer. Which carcinogen is in cigarette causes lung cancer? Hydrocarbons. Hydrocarbon causes lung cancer. In 60% of body fluid, how much it will be present in intestinal fluid? तो ऑप्शन ये इंटरस्टिशियल होना चाहिए। 11, 3.5, 11.5 is in interstitial, 3.5 in plasma.
टोटल 14 लीटर इन इंट्रासेलुलर, और एक्स्ट्रा में कितना होगा? 11. Which nerve formed from anterior division of sacral plexus? Nerve to piriformis. Posterior से sciatic आएगा ना, anterior से piriformis. Nerve to piriformis. Ligand gated ion channels, which receptor act through it? GABA A. Skin of glans penis drained by superficial inguinal lymph nodes. Glans penis अगर खुद होता तो it is drained by deep inguinal, but skin is drained by superficial inguinal. Equal chance of each person being selected in a study is called random sampling. What is the fetal component of placenta supplying most of nutrition and gas exchange? Choriofrontosome. Fetal side पर जो होता है placenta का part, that is frontosome. Chorion का frontosome part is fetal component. Fifty-five years old woman present in OPD with prolapsed uterus and intact anal canal due to intact external anal sphincter. Because external anal is intact, तो anal canal का कुछ नहीं होगा. Which skin layer helps in healing after knife injury? Basal. Basal layer would be involved in healing. Atherosclerosis plague, which of following three found? Smooth muscle, connective tissue and macrophages. अब प्लेग के तीन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स, मैट्रिक्स एंड लिपिड्स. सेल्स में स्मूथ मसल, कनेक्टिव टिश्यू और मैक्रोफेजेस होंगे. मैट्रिक्स में क्या आएगा? इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलेजन. और लिपिड्स क्या होंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर लिपिड्स. तो तीन चीजें, सेल्स होंगे और उसका आउटर कंपोनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा अलोंग विद लिपिड्स. तो ऑप्शन में आपको ये डी ऑप्शन में तीनों चीजें मिलती हैं. स्मूथ मसल्स भी हैं और कनेक्टिव टिश्यू को आप एज अ ले लें कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इलास्टिक फाइबर्स वही होते हैं ना, एंड मैक्रोफेजेस. पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस एंड डायरिया. कॉप्लिक स्पॉट बाइट आउट स्पॉट ये होगा इन विटामिन ए डिफिशियंसी. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ओरल मैक्रोसाइट्स. इंट्रिंसिक फैक्टर गिवन. डायग्नोसिस क्या है? कोबैलामिन डेफिशिएंसी. Megaloblastic anemia है B12 deficiency. A 29 years old woman as admitted to a hospital because the birth of her child is several days overdue. Tearing the pelvic diaphragm due to childbirth leads to paralysis of which muscles? So levator ani muscles हैं. 29-year-old woman is admitted to a hospital because the birth of, again same question है. Person loses 2 liters of sweat while working and drinks 2 liters pure water. What changes will occur? तो increase ICF volume. पहले उसने 2 liters lose किया while sweating और then he drank 2 liters pure water. तो डायग्नोसिस क्या है? इंक्रीज आईसी वॉल्यूम. सबसे पहले इंट्रासेलुलर वॉल्यूम ज्यादा होगा, देन इंट्रासेलुलर वॉल्यूम की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हुई यानी डाइल्यूशन होगी, देन इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम. तो इंट्रा की बात पहले होगी, देन एक्स्ट्रा. Women present with vaginal bleeding examination shows cervical polyp in endocervix lined by stratified squamous epithelium. This is likely metaplasia. So it is when the epithelium is replaced by any other epithelium, it is called metaplasia. Female having UTI, gynecologist advise urinary shows pus cells. Organism is gram positive, catalase negative. Catalase positive and coagulase negative. Which organism is involved? स्टेफ सेप्रोफाइटिकस. ये मैं आपको क्लासिफिकेशन करवाऊंगी कोगुलेज पॉजिटिव नेगेटिव की, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. तो यूटीआई में
वैसे भी यूटीआई में सेप्रोफाइटिकस इज कॉमन जो यूटीआई कराता है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो यूटीआई कराता है दैट इज इकोलाई। Which of the following disorder has repeated sequence of trinucleotides fragile X syndrome? हंटिंगटन में इट इज ऑटोसोमल हंटिंगटन डिजीज, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में आप इसका ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स का देखें सीक्वेंस तो C, एंड X डोमिनेंट। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट। न्यूक्लियोटाइड्स के आपने उसको ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने याद करना है इसका सीक्वेंस के कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स है, बस ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स इज फाउंड इन फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और ऑटोसोमल डोमिनेंट है हंटिंगटन, मायोटोनिक एंड फ्रेजाइल, तीनों ऑटोसोमल डोमिनेंट है। फ्रेडरिक एटेक्सिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव। Female with multiple sexual partners develop vaginal irritation and pus organism found with jerky vomit. So this is trichomonas. Trichomonas में लाइट ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होता है, jerky vomit होती है ऑर्गेनिज्म की। Most urgent test for finding bacteria is staining. Organ lined by stratified squamous epithelium with increased vascularity, elasticity, tubular glands. This is vagina. Vagina में elasticity ज़्यादा होगी with increased vascularity. एंड सी द एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। जब भी बॉडी की ओपनिंग्स पे जो एपिथेलियम होगा दैट वुड बी स्क्वामस एपिथेलियम। वजाइना एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। व्हाट इज present along with it? Highly elastic fibers and lamina propria. Which structure formed from genital tubercle? Clitoris. Tubercle से बनता है clitoris. Formation of upper part of vagina by lower fusion of Mullerian duct. Lower part is formed by the tubercle and upper part is formed by lower fusion of Mullerian duct. How many different codons can stop lengthening? 3 codons. 3 codons can stop lengthening is 3. Which muscles are involved in forceful inspiration? Now ये बहुत repeated MCQ है. Diaphragm, external intercostal, sternocleidomastoid, serratus anterior, scalene muscle. These all are involved in forceful inspiration. अगर सिर्फ सिंपल इंस्पायरेशन होता तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, लेकिन फोर्सफुल है ना तो फोर्सफुल में सारे बाकी के मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे। डेफिनेशन ऑफ डिस्मोप्लेसिया इज नो नियोप्लास्टिक proliferation. Pleural fluid with inflammatory cells, eosinophils, mesh of threads, amorphous coagulum. Type of inflammation fibrinous. और fibrinous किस में होती है? Vessels में होती है। Which factor present in serum while other produce and consume? तो this is factor 7. सीरम में कौन सा फैक्टर होता है? फैक्टर 7, एंड इट इज विटामिन के डिपेंडेंट। 1972 में किरण ने CSS किया। प्रोटीन CS10972, these are vitamin K dependent. Aspirin mechanism of action is pregnant lady is COX inhibitor. Aspirin जो है वो antiplatelet drug है, it is COX inhibitor. Which one has highest molecular weight? Titin. This is the molecule protein having the highest molecular weight. एस्पिरिन या लोपेरिन देते हैं पेशेंट्स को जिनका बीपी हाई होता है, उनको एंटीनेटल केयर में एस्पिरिन दी जाती है ताकि टू मेंटेन प्लेसेंटल परफ्यूजन एडिक्वेटली। पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एरिया डैमेजेस वर्निक्स एरिया। अगर मोटर है ना पेशेंट कांट
speak or fluently, that is motor aphasia. Area involved is 44-45. वर्निक्स में सेंसरी होगा, सेंसलेस स्पीच होगी, नॉन सेंस स्पीच बोलेगा, ठीक बोलता है फ्लुएंटली लेकिन नॉन सेंस बोलेगा, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता चीजों को। ग्लोबल एफेसिया में क्या होगा, वर्निक्स और ब्रोकास दोनों होंगे। एनोमिक में क्या होगा, माइल्ड फ्लुएंट एफेसिया प्लस फेलियर ऑफ वर्ड रिट्रीवल प्लस एंगुलर गायरस। आर्कुएट फेसिकुलस एक फाइबर्स होते हैं इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और एंगुलर गायरस भी, गायरस यानी कि दो, एक कमीशर होता है दरमियान में, एक डिफेक्ट होता है, तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर गायरस। इसकी डेप्थ में नहीं जाना कि ये किस तरह होगा, बस ब्रोकास और वर्निक्स का याद रखते हैं कि ये मोटर है और वर्निक्स इज सेंसरी। एरियाज कौन से इन्वॉल्व हैं, ब्रोकास में 44-45 एंड वर्निक्स में एरिया 22 इज इन्वॉल्व विच इज इन सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। ब्रोकास ब्रोकन माउथ से याद रखें, फ्रंटल गायरस, इंफीरियर मुंह कहाँ होता है हमारा, नीचे होता है ना, इंफीरियर, तो इंफीरियर फ्रंटल गायरस में ब्रोकास होगा, और कान थोड़े से ऊपर होते हैं ना, तो टेम्पोरल रीजन में सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में वर्निक्स एरिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। Most common characteristics, sign and symptom of food poisoning due to Clostridium botulism is flaccid paralysis of respiratory muscles. Respiratory muscle को Clostridium attack करता है, Clostridium botulinum. Patient got scared on watching lion in jungle. He got goosebumps. What is the mechanism? Constriction of erector pili muscles and skin. Action of norepinephrine on heart, increase AV conduction. हार्ट फेलियर के पेशेंट में या कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में इमरजेंसी बेसिस पे आईसीयूज में भी इमरजेंसीज में देते हैं ना एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन, तो इट कॉजेस इंक्रीज एवी कंडक्शन, जल्दी से करंट को स्प्रेड करता है टू अदर पार्ट्स ऑफ हार्ट। An old man patient goes for abdominal surgery, feels pain in leg. What is the cause? Immobilization. Urinary abnormality associated with schistosomiasis. Hormone required for brain development in fetal life is thyroid hormone. Plegra is associated with deficiency of vitamin B3, niacin. During pregnancy, lumen of uterine cavity is obliterated by fusion of Dystra capsularis and parietalis. अब जो यूट्रस की वॉल है ना, उसकी लेयर्स है, पेरीमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम। अब जो अंदर है ना, जो प्लेसेंटा जहां पर अटैच होता है, तो ओवरऑल जो यूट्रस की लाइनिंग है ना अंदर से, उसके सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पूरी कैविटी ऑब्लिटरेट होगी यानी फिल हो जाएगी बाय टू लेयर्स, कैप्सुलरिस एंड पेराइटालिस। RBC formation 20 weeks occurs in liver. After vasectomy, seminal fluid will contain seminal and prostatic fluid. फ्लूइड ही होगा उसमें। टोटल स्पर्म काउंट इन वन डे इज 120 मिलियन। 2 टेस्टिस पर डे कितना बनाते हैं, 120 मिलियन। टोटल स्पर्म पर इजैकुलेशन 400 मिलियन पर इजैकुलेट और 120 मिलियन पर ml। टोटल नंबर ऑफ मेच्योर स्पर्म्स 100 मिलियन पर इजैकुलेट। टोटल नंबर ऑफ मेच्योर स्पर्म्स आर 100 मिलियन और इजैकुलेशन और 20 मिलियन per ml. For person to be fertile, sperm count should be at least 20 million per ml. This is important. यह आता है कि फर्टिलिटी के लिए 20 मिलियन पर ml होना चाहिए एटलीस्ट। 5 मंथ प्रेग्नेंट लेडी थायरोटॉक्सिकोसिस है, क्या देंगे, मेथिमेजोल। अगर होती है 3rd मंथ तक तो प्रोपाइल थायरोरेसिल। Which of the following is diagnostic criteria for sarcoma?
increase vascularity. Recent thrombus consist of fibrin. Mesh बनाता है ना fibrin. Climber at high altitude experience hypothermia on returning to base camp, adapts to cold weather by heat generation, due to which of the following? Posterior. तो cold weather के लिए posterior. Cold temperature activate करता है posterior hypothalamus को और एक्टिवेट करता है सिम्पथेटिक को, जो शिवरिंग कॉज करेगा। शिवरिंग का मकसद ये होगा कि अंदर बॉडी में हीट को प्रिजर्व करना, इंक्रीज हीटिंग करता है। इंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है बाय हॉट टेम्परेचर, एक्टिवेट पैरासिम्पथेटिक, और वो कॉज करेगा डायलेशन, विजुअलाइजेशन करता है जिसकी वजह से कूलिंग होगी। ओवरऑल टेम्परेचर रेगुलेशन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन इंटीरियर हाइपोथैलेमस। फीमेल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, माइल्ड जॉन्डिस एंड येलो स्क्लेरा। कॉज ऑफ icterius diagnosis of PBC, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। बिलियरी ट्रैक्ट में सिरोसिस होगा तो कैसे करेंगे कंफर्म? आमा एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी। Patient came with skin rash and urticaria, history of diphtheria vaccine। तो वैक्सीनेशन की हिस्ट्री आ गई टाइप 3। डिप्थेरिया में हमेशा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। Pseudomembrane colitis caused by Clostridium difficile। एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं ना तो उसमें भी pseudomembranous colitis होगा। Pregnant lady with labor pains for 2 hours and developed dyspnea and died within 15 minutes of labor, most likely causes amniotic fluid embolism। अगर एयर embolism है ना तो इसमें होगी history of CVP with shortness of breath। Pregnant lady a long bone fracture died on way to hospital within 24 hours of labor। इसमें history is important। Died on the way to hospital within 24 hours of labor, तो this is amniotic fluid embolism। Sudden death तो pulmonary embolism। Long bone fracture की सिर्फ हिस्ट्री दी है death after 3 or 5 days, then it is fat embolism। अब ये जो ऊपर प्रेगनेंसी का सिनेरियो है इसमें लॉन्ग बोन फ्रैक्चर का सिर्फ डिस्ट्रैक्टर डाला जा सकता है। जब प्रेग्नेंट है 3 चीजें याद रखनी है, प्रेगनेंसी है and died on the way to hospital or within 24 hours of labor, तो this is amniotic। और सिर्फ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की हिस्ट्री है with no any history of laboring, then it is fat embolism। लेकिन उसमें भी डेज मैटर करते हैं, 3 to 5 days। ventricles maximum filled at end of atrial systole और maximum ventricle filling होगी in rapid filling phase। Benzodiazepines, barbiturates and other anticonvulsant work by acting on GABA। GABA is inhibitory। Seminal vesicle secretes when increases in intracellular calcium। About vitamin D, true is 25 hydroxylation in liver and 1 alpha hydroxylation in kidney। लिवर में 25 हाइड्रोक्सिलेशन होगी एंड 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन होगी इन किडनी। बेरोरिसेप्टर इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिक्रीज एट्रियल प्रेशर। तो बेरोरिसेप्टर प्रेशर को एसेस करेंगे, उसके बाद ये फर्दर आगे रेगुलेट करते हैं और ये एक्टिवेट करते हैं सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक को, तो जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। Pregnant women increase abdominal grip size and uterus change likely due to structural physiological change। Both allele express this is called codominance। Which part of intestine thick loop with less mesentery fat and long vasa recta? So this should be jejunum। Less mesentery, long vasa recta। In strenuous exercise, what decreases? Total peripheral resistance। IG receptors are found on mast cells। Transitional epithelium कहाँ होगा? Apical dome shaped होते हैं। इसके characteristic कैसे होगा? Apical dome shaped। Female erotic root
dilation up to 4 centimeters. Ocular examination showed lens dislocation, mitral valve leaflet defect with a systolic click defect. Which of the following क्या है? Inherited deficiency of fibrillin. ये मेल्स में वैसे होना चाहिए. मार्फिन सिंड्रोम को कर रहे हैं. 4 centimeters एरोटिक रूट डायलेशन होगी, एक्टोपिया लेंटिस हुआ और mitral wall leaflet defect. तो this is because of which protein defect? Inherited deficiency of fibrillin. Atria stretch leading to tachycardia. This is brain bridge reflex. एट्रिया स्ट्रेच होगा जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स. एंटीकोगुलेंट इन विट्रो एंड इन बॉडी इज हेपेरिन. Natural anticoagulant in our body is heparin. Fracture of head of femur leads to avascular necrosis of head. Artery involves is which of the following? Medial circumflex artery. फीमर और ह्यूमरस में आपने डिफरेंस याद रखते हैं कि ह्यूमरस की जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो इंटीरियर पोस्टीरियर है. तो हम एनाटॉमी में इंटीरियर से बात स्टार्ट करते हैं ना, इंटीरियर पोस्टीरियर, और नीचे जब फीमर में आएंगे तो मीडियल एंड लेटरल. हेड ऑफ फीमर बाय रेटिकुलर आर्टरी is greater than medial circumflex. So this is the supply for head of femur. बच्चों में रेटिकुलर नहीं होती है. Neck of femur by medial and lateral circumflex. In avascular necrosis of head of femur, medial circumflex. बच्चों में ऑब्चुरेटर होगी. 4 years old boy. अब आपने ये माइंड में रखना है कि we are studying Klippel-Feil syndrome. अब सिनेरियो को देखें. 4 years old boy was attended in clinic and was observed to have short neck. First is short neck, low hairline on posterior aspect of neck, and known to be suffering from heart condition. Short neck है, low hairline and heart condition है. X-ray neck showed fused cervical vertebra. This is important. उसके जो cervical vertebrae होंगे they should be fused. Examination पे limited movement of upper limb. So this is Klippel-Feil syndrome. This is very easy to diagnose. Anterior to left suprarenal gland is lesser sac. लेफ्ट साइड पर एड्रीनल ग्लैंड है, उसके एंटीरियर रिलेशन में क्या आएगा? लेजर सैक. और पोस्टीरियर में डायफ्राम. दोनों ग्लैंड्स के पोस्टीरियर रिलेशन में डायफ्राम, क्योंकि इज अ बिग एंड ब्रॉड डोम लाइक शेप्ड होता है डायफ्राम में. तो दोनों ग्लैंड्स के पोस्टीरियरली डायफ्राम, एंटीरियरली लेफ्ट साइड पर पेनक्रियाज, लेजर सैक एंड स्टमक. PSL, pancreas, stomach and liver, lesser sac of stomach. And right side पर liver होता है तो right lobe of liver and IVC. Anterior complete endocrine and gonadal development ovulation starts regularly at menarche. This is called menarche, यानी जब start होती है ovulation. Which factor is important for delayed wound healing? Diabetes. Female with recurrent abortion and isolated prolonged APTT is most likely associated with lupus anticoagulant. Recurrent abortions हो रहे हैं and is associated with prolonged APTT. Aponeurosis fibers of internal oblique form which structure? Conjoint tendons. Internal oblique and transversus abdominis. दोनों के tendons fuse करते हैं and they form conjoint tendon. Rectus sheath above arcuate line is formed by external and internal oblique aponeurosis. और अगर below the arcuate line होगी तो aponeurosis of all three muscles. Above होगी तो external fiber बनाएगा anterior wall along with internal, और posterior wall is formed by posterior internal oblique and transversus abdominis both.
तो जो इंटरनल ओब्लिक है ना उसका वो स्प्लिट होगा इनटू टू हाफ्स लाइक दिस। ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ओब्लिक हो गया। इंटरनल ओब्लिक की जो बैली है इट विल स्प्लिट इनटू टू। एक फ्रंट पे जाएगा एंटीरियर साइड पर और एक जाएगा पोस्टीरियर साइड पर। तो इंटरनल जो है वो पोस्टीरियरली भी कवरेज देगा और एंटीरियरली भी। और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस पोस्टीरियरली उसके साथ होगा, एक्सटर्नल ओब्लिक उसके एंटीरियरली उसके साथ लाई करेगा। लेकिन आर्कुएट लाइन से बिलो सारे के सारे मसल्स इंटीरियर वॉल बनाएंगे। Patient presented with hemisectional spinal cord, what changes could be seen in the patient? Contralateral loss of pain and temperature below the lesion. क्योंकि फाइबर्स डिकसेट करते हैं ना टू द ऑपोजिट साइड, तो बिलो द लीजन कॉन्ट्रालेटरल यानी ऑपोजिट वाली साइड इन्वॉल्व होगी। Which of the following structures lies parallel and deep to carotid sheath is sympathetic trunk. It lies deep to carotid sheath. Study that claim to decrease the effect of environment on genetics is descriptive study. A lady drowned in water and was taken out and resuscitated. Later, she developed acute respiratory distress. Likely mechanism is interstitial edema. क्योंकि जो वाटर बॉडी में चला गया है उसकी वजह से एडिमा हो गया है। इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में वाटर स्प्रेड हो गया है, तो acute respiratory distress होगा। A superficial pudendal nerve passes through saphenous opening. Lymph nodes enter from blood to lymph by posterior capillary venules to deep cortex. Blood से lymph में how does they enter? By posterior capillary or post capillary venules to deep cortex. A female had unprotected intercourse and she is now having a chances of being pregnant. So which postcoital oral contraceptive should be used? लेवोनॉर्जेस्ट्रिल, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना दैट इज इफेक्टिव और वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को। IUCD failure rate is less than 1%. Mother milk has more than cow milk. What is lactose? मदर मिल्क में लैक्टोज ज्यादा होता है लेकिन बाकी कुछ चीजें डेफिशिएंट भी होती हैं, आयरन वगैरह। ड्रग्स given after meal due to decreased GI disturbance. Feature of acid fast bacilli in TB is mycolic acid. Which iron is required for secretory substance through exocytosis? Calcium. G2 phase between S and M. साइकिल हमने पढ़ा था ना, तो इसका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग S और M के दरमियान G2 लाइज। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर फंक्शन आर एक्ट ऑन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। कीमो है ना, तो कीमो असिस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच और ऑक्सीजन को। लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोसिटिक फेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग? मलेरिया। माला से याद रखें, माला लंबी होती है ना तो लॉन्गेस्ट प्रोएथ्रोसिटिक फेस होगा। सब एराकिनोइड स्पेस एंड करता है एट S2 लोअर वर्टिब्रा। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्केलेटल मसल वाई? ग्लूट 4। तो स्केलेटल मसल्स पर कौन से होते हैं? ग्लूट 4। पेनक्रियास के अंदर कौन से होते हैं? ग्लूट 2। प्राइमरी oocyte changes into secondary oocyte with one polar body. CSF in normal, this question is from virology. CSF in normal condition 10 m water pressure, यानी कि वाटर प्रेशर के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो CSF नॉर्मल कंडीशन में वाटर का 10 mmHg प्रेशर होगा। 10 centimeters according to the column. So CSF pressure is 10 to 20 centimeters water or
60 to 150 mm of water और 6 to 15 mm Hg। तो mm Hg में अगर हमने देखना है तो 6 to 15, और अगर वाटर कॉलम के अकॉर्डिंग देखना है तो इट इज 10 to 20 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर कॉलम। प्रोडक्शन होती है 20 ml पर आवर पर डे, 450 to 500 ml। वेंट्रिकल्स में CSF कितना होता है? 150, जो लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल होता है। A female with white discharge but fishy odor, डायरिया भी है, ट्रीटमेंट क्या होगा? मेट्रोनिडाजोल फ्लेजल देंगे। फिशी odor बैक्टीरियल विजनोसिस में होता है। आफ्टर डायबिटीज साइटोकाइंस इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन इज C5a। What is the function of pacinin receptor to detect is transient vibration। डिटेक्ट करता है ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को। पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन किस लेवल पे होगी? एट L2 to T12। L1 L2 पॉइंट था जहां पर रीनल आर्टरी एंटर हो रही थी। तो पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन इज L2 to T12। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फंक्शन इज इम्यून रिकॉग्निशन। MHC जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होते हैं, इनका काम होता है कि ये इम्यून रिकॉग्निशन कराते हैं। फीमेल यूरेथ्रा लाइज, पोजीशन पूछी गई है, लाइज अबव यूरोजेनिटल डायफ्राम। नेक ऑफ फीमेल यूरेथ्रा लाइज अबव डायफ्राम एंड फीमेल यूरेथ्रा मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। नेक ऑफ फीमेल यूरेथ्रा यानी कि जो यूरोजेनिटल डायफ्राम है ना, दिस इज फॉर एग्जांपल यूरोजेनिटल डायफ्राम जो मसल से मिलके बनता है, उसके नीचे पाउचेस पड़े होते हैं, ठीक है। ऊपर से ये ब्लैडर है, पेशेंट का ब्लैडर है, और यहाँ से जो यूरेथ्रा आ रहा है दिस लाइज अबव, यहाँ तक इसकी नेक होगी यूरेथ्रा की। तो डायफ्राम से ऊपर ऊपर इसकी नेक लाई करती है। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, लाइसिन ल्यूसिन। लाइसिन ल्यूसिन कीटोजेनिक है, पॉजिटिव चार्ज हिस्टिडीन अर्जिनिन लाइसिन पर है और नेगेटिव चार्ज एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट पर है। डीएनए हैज हिस्टिडीन। Child eat food at restaurant. Child presents with abdominal pain with dysentery. Stool contains pus and RBCs. Causative organism hemorrhagic E. coli. Because RBCs है ना। Ligand gated ion channels act on which receptor? GABA A. GABA A के लिए ligand gated ion channels. Magnesium sulfate acting on nicotine. Let me confirm this. N-methyl D-aspartate receptor. This is receptor in brain. तो मैग्नीशियम सल्फेट एक्टिंग ऑन एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, कॉज ऑफ इनहिबिशन इन सीजर इज इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एंट्री। जब कैल्शियम, ये क्लम्शिया के पेशेंट्स में देते हैं ना मैग्नीशियम, लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज, तो कैल्शियम एंट्री को इनहिबिट करता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। इन हाइड्रोसिल फ्लूइड accumulated in tunica vaginalis। वेजिनालिस में एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद एल्पिजिना वेस्कुलोसा को वो पियर्स नहीं कर सकता, यानी वो नीडल भी कर पास करें तो उसको पियर्स नहीं कर सकती। हाइपरकेलेमिया लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्लैसिडिटी। हाइपरकेलेमिया। Which factor should be most important in descriptive studies? Gender. Study of 200 guests with vomiting and diarrhea and some guests presents with symptoms after 2 days. Study involved, this is cohort study. We'll discuss this in detail in public health. Cohort, case control, ये इनकी definitions हैं, उसके according हमने इसको देखना है। Pulmonary artery supply alveoli.
Left bronchus supplied by bronchial branches from descending thoracic aorta, and right bronchus, this is very very important. Right bronchus की बहुत दफा आया क्वेश्चन. Right bronchus from third posterior intercostal artery arises from thoracic aorta. तो एक thoracic aorta यानी thoracic region में फिर descending aorta है. दोनों ये डिसेंडिंग और लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस दोनों एरोटा से सप्लाई आ रही है, लेकिन राइट ब्रोंकस की थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज को सप्लाई करती है. ये अलग से एक आर्टरी आती है, थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. बाकी जो लेफ्ट ब्रोंकस है इट इज सप्लाइड बाय ब्रोंकियल ब्रांचेस. Right bronchus is not supplied by bronchial branches. It is supplied by intercostal artery. जो दो रिब्स के दरमियान मसल है ना, इंटरकोस्टल मसल, उस मसल थर्ड वाले मसल की आर्टरी से राइट ब्रोंकस इज सप्लाइड. लेकिन लेफ्ट ब्रोंकस इज सप्लाइड बाय ब्रोंकियल ब्रांचेस. एंड पल्मोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है? एल्वुलाई. There is a risk of nausea vomiting patient where anesthetic drug can be used post operatively, so it is propofol. T cells involved in which disease? Type 1 diabetes. Urogenital diaphragm is supplied by pudendal S2, S3, S4. Middle age non end stage renal disease list for hemodialysis, multiple transfusion done, normocytic, normochromic anemia, appropriate therapy क्या होनी चाहिए? सबकट एरिथ्रोपोइटिन, क्योंकि renal डिजीज है ना, एंड स्टेज है, तो एरिथ्रोपोइटिन माइट नॉट बी फॉर्म्ड, तो इसमें सबकट एरिथ्रोपोइटिन देंगे. स्पर्म लाइफ स्पैन इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज 72 आवर्स. 72 आवर्स तक इंटरकोर्स के बाद वो स्पर्म्स अलाइव रहते हैं. पेशेंट विद एब्सेंट यूट्रस इन लार्ज क्लेटोरिस, ब्लाइंड एंड विजाइना, लाइकली ड्यू टू एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम. ये मेल है एक्चुअली में. फिनो फिनोटिपिकली ही इज मेल, लेकिन वो रिस्पोंड नहीं करता एंड्रोजन्स को, इनसेंसिटिव हो गया टू एंड्रोजन्स, इसलिए फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है. अपेरेंटली वो फीमेल लग रही है. अब देखें अंदर एब्सेंट है यूट्रस, क्योंकि वो अंदर से वो मेल है. अपेरेंटली वो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी की वजह से वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के साथ मैच करते हैं. दिस इज कॉल्ड एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम. A patient with apical fold mental retardation, so this is for Down syndrome. Typical feature इसमें होते हैं, mentally retard होता है, apical fold नहीं होते, और protruded abdomen. A patient has fracture of pterion having bleeding due to MMA, middle meningeal artery. हमेशा याद रखना है कि टीरियन पे जब भी फ्रैक्चर हुआ तो इट इज डेथ इज बिकॉज ऑफ मिडल मेनिंजियल. किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी आर्टरी की. 24 years old primary gravida is a 34 weeks pregnant. Fundal height 28 है, यानी correspond नहीं कर रही है to that of actual week. ये अब this is small for gestation age. होना उसको 34 और 33 होनी चाहिए थी उसकी fundal height, लेकिन it is 28 centimeters. Amniotic fluid भी कम है, less than 5 है. कौन सी condition है इसमें? So this is renal agenesis. Gestation age is more than fundal height, then renal agenesis and oligomenorrhea. अगर लेस है तो एसोफेजियल एट्रीजिया, हाइड्रोकेफलस एंड पॉलीहाइड्रोमियोस, यानी अगर वो ज्यादा फंडल हाइट ज्यादा शो हो रही है लेकिन एक्चुअली में उसकी एज कम है बेबी की, तो देन इट इज बिकॉज ऑफ एट्रीजिया और हाइड्रोकेफलस और पॉलीहाइड्रोमियोस. ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए साइट लिवर है. कैप्सूल ऑफ किडनी सप्लाइड बाय इंटरलोब्यूलर. Oxygen arterial blood is less than oxygen alveoli because oxygen need pressure gradient for diffusion. आर्टीरियल ब्लड में कम होगी लेकिन एल्वोलाई में, क्योंकि एल्वोलाई में डायरेक्टली एयर एंटर हो रही है ना, इनहेल हो रहा है डायरेक्टली, तो और वैसे भी इसमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए ताकि डिफ्यूजन हो सके. ऑक्सीजन जब हम लंग्स में इनहेल करते हैं तो हमें बॉडी को चाहिए होती है, तो वो ब्लड में जाती है. ऑलरेडी आर्टरीज में ऑक्सीजन कम होनी चाहिए ताकि वो एल्वोलाई ए ग्रेडियंट जो बनता है ना, उसकी वजह से डिफ्यूजन प्रॉपरली हो सके. हाईएस्ट से लोअर में जाएगा, लंग्स से लोअर साइड पर जाएगा, तो इस तरह से बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड पूरी होगी.
35 years old lady recently lost her husband in car accident. She was psychologically disturbed and developed amenorrhea. The most likely cause is decreased dopamine. डोपामिन नॉर्मली इनहिबिट करता है ना प्रोलैक्टिन को और कंट्रोल करता है मूड को. व्हेन डिक्रीज डोपामिन रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोलैक्टिन. तो यस, तो प्रोलैक्टिन डोपामिन का इन्वर्स रिलेशन है. उसने बहुत टेंशन ली, डिप्रेशन में है, तो डोपामिन जो हैप्पी हार्मोन है वो कम हुआ. डोपामिन का काम क्या था कि वो प्रोलैक्टिन के अगेंस्ट जाता है. जब डोपामिन कम हुआ तो प्रोलैक्टिन डेफिनेटली ज्यादा हो गया. प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तो वो जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स हैं उनको अटैक करता है. तो इसकी वजह से क्या होगा, एमेनोर्गिया, नो मेंस्ट्रुएशन. Patient had internal jugular lymph node biopsy in neck region. After that, he developed numbness of earlobe. तो earlobe पर greater auricular nerve sensory information लेकर जाती है. Hodgkin lymphoma viruses कौन से हैं? Epstein Barr virus. Mutation of proton cogen by exogenous virus. Virus करता है mutation. फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर के. बरका जीन रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर. दीज जीन्स प्रेजेंट इन विच प्लेस? बरका कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर. ईटिंग रॉ मीट में ट्रांसफर टीन या सोलियम. इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कोबालामिन ट्रांसपोर्ट. B12 एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड. B12 ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसकोबालामिन इज रिक्वायर्ड. T फॉर ट्रांसपोर्ट, T फॉर ट्रांसकोबालामिन. स्ट्रेटम फंक्शनैलिस फॉर्म्ड बाय compactum plus spinosum. So this is the layer of skin. Compactum plus spinosum forms stratus functionalis. 38 weeks pregnant है. Visitor her family remote area की हिस्ट्री है, वहां पर इसने जॉन्डिस डेवलप कर लिया. हेपेटाइटिस कौन सा होगा? ई. रिमोट में ई आएगा. ओरोफिकल ए इज ग्रेटर देन ई. मोस्ट लीथल इज डी. मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी इज ओवरऑल हेपेटाइटिस ए, लेकिन लीथल भी है अलॉन्ग विद रिमोट एरिया की विजिट की हिस्ट्री है, तो देन इट इज हेपेटाइटिस ई इन प्रेगनेंसी. Accessory cervical rib arising from transverse process of cervical vertebra may cause damage to T1. Thoracic का T1. Follicular carcinoma of bladder metastasized to which organ? Brain. Bladder से brain में जाएगा. Y vertebras. Bone density DEXA assess करता है. Pregnant lady है, उसको hyperthyroidism है, तो propyl thiouracil देंगे. Which of the following is benign tumor? So it is Warthin. Warthin is a benign tumor. 60 years old body fluid, how much of it will be present interstitial? तो 11. CS cervix कौन कराता है? Human papilloma. 16. Boy presented with history of unconsciousness, fits, high grade fever, dark colored urine for 1 day. CSF examine is a remarkable diagnosis is malaria. Dark color malaria में होगा along with इसकी देखिए फिट्स और अनकॉन्शियसनेस की हिस्ट्री है. हाई ग्रेड फीवर, तो दिस इज इन मलेरिया. चिल्स और राइगर्स के साथ होता है मलेरिया. इफेक्ट ऑफ ग्लूकागोन ऑन हार्ट इज लाइक एपिनेफ्रीन. जैसे एपिनेफ्रीन एवी कंडक्शन को इंक्रीज करेगा ना, तो ग्लूकागोन का भी यही काम है. प्रेग्नेंट लेडी प्रिस्क्राइब्ड मेटफॉर्मिन. बेनिफिट क्या होगा इसका? यूटिलाइज फैट, क्योंकि जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनमें भी मेटफॉर्मिन का अच्छा इफेक्ट आता है क्योंकि वो फैट को कम करता है. इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी. अब इसको देख लें. दो हमने आर्टरीज पढ़ी थी जो एनास्टोमोस करती थी. अब सुपीरियर और इंफीरियर की बात है. सुपरफिशियल को छोड़ दे. सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर पड़ी हुई. सुपीरियर ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक की और इंफीरियर ब्रांच है एक्सटर्नल आइलिक की. दोनों एनास्टोमोस करेंगी. अगर इनमें से एक भी कोई ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होगी तो दूसरी इसको कॉम्पनसेट करेगी. सुपरफिशियल एपिगास्ट्रिक है ना, तो वो फेमरल से ही आकर ऊपर एपिगैस्ट्रिक एरिया के सुपरफिशियली सप्लाई करेगी. लिम्फेटिक ड्रेनेज जो और फेमरल किसकी ब्रांच? एक्सटर्नल आइलिक की. ब्रेस्ट के ऊपर आउटर क्वाड्रेंट की ड्रेन करेगा इनटू एंटीरियर एक्सिलरी. दिस इज लिम्फेटिक ड्रेनेज. अब यहां से आप देखें कि निपल ड्रेनेज होती है एंटीरियर एक्सिलरी यानी पेक्टोरल रीजन में. अपर लेटरल एंटीरियर एक्सिलरी. लोअर लेटरल यानी इंफीरियर साइड जो है वो
एंटीरियर के साथ साथ सब डायफ्रेगमेटिक में भी जाएगी, यानी नीचे है ना तो नीचे ही डायफ्राम पड़ा है। मीडियल क्वाड्रेंट इंटरनल थोरेसिक की तरफ जाएगा, इंटरनल मेमोरी। लोअर इनर मीडियल क्वाड्रेंट इंफीरियर फ्रेनिकिया सब डायफ्रेगमेटिक। टेल ऑफ ब्रेस्ट पोस्टीरियर, यानी टेल जो है इसकी पिछली साइड पर होती है, तो इट इज ड्रेन बाय पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स। पाथ क्या होगा लिम्फ नोड का? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट लिम्फ, मीडियल एंड लेटरल। To check the status of vitamin A in a community, the most cost-effective method of assessing is dietary analysis. Which structure crosses at the pelvic brim? Ovarian artery. Cup double OI. C-section में uterine arteries damage, oophorectomy में pelvic brim पे ovarian artery and oophorectomy में I leak. 6 years old girl presented with iron deficiency, HB5 has been enlarged है, palpable frontal bossing, HB increased in thalassemia. मेजर तो हेपेटाइटिस हीमोग्लोबिन फीटल वाला इज इंक्रीज इन थैलेसीमिया मेजर। डिस्टेंस फ्रॉम sacral promontory to posterior surface of pubic symphysis is ops conjugate। 3 conjugates थे ना, ops, diagonal and true conjugate। Peripheral neuropathy is secondary to SN as it is reversed by B6। एसिड एसिड न्यूरोपैथी करेगा, अगर B6 देंगे तो इट कैन बी प्रिवेंटेड। पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट्स इन चाइल्ड बर्थ, तो पॉजिटिव यानी कि जो एक चीज हो रही है वो फर्दर प्रोसेस प्रोसीड कर रही है। दिस इज चाइल्ड बर्थ, यानी लेबर पेन हो रही है, एक पेन आएगी फर्दर दूसरी पेन आएगी, तो दिस इज ऑन गोइंग एंड पॉजिटिव फीडबैक। ब्लड क्लॉटिंग भी इसी तरह है, कोगुलेशन हो रही देन फर्दर कोगुलेशन हो रही। लेकिन नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है, तो नेगेटिव फीडबैक के जरिए से ये स्टॉप होगी। कंट्रोल ऑफ ऑप्टिमल इंटरनल एनवायरनमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स। इंटर एल्वुलर सेप्टम के दरमियान कौन से सेल्स होते हैं? मैक्रोफेजेस। नटमेग लिवर कॉज करता है, कॉज है इसकी क्रोनिक पैसिव कंजेशन। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे आफ्टरनून में 24 का। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज।